Assalamu alaikum, good morning. Once again, warmly welcome to my all 7th standard student, class 7th standard student A and B. Once again, I just wish to all of you a very pleasant morning time, and I hope so you are enjoying one of the good health and high spirits at your home, inshallah taala. Okay, during the lesson, आपको पता है last time जैसे हमने अपने lessons को आपसे डिस्कस किया था, in the previous week we discuss about the topic, we read about the topic, we thoroughly read about the topic, the three precious packets. Okay, I give you one of the more information regarding their inform meaning, regarding Urdu meaning, regarding the story structure, and you are be capable to very well know, because now time we just completed our two stories and both stories are based on folk tale. Okay, क्योंकि folk tale को मैंने आपको explain किया था कि you can feel so happy and enjoy too when you read about the deeply about the folk tale, because what about the folk tale elements, motive, their construction, structure, okay, about their story setting, conclusion, ending, middle, starting, characters, जितना आप उसको deeply interestingly ways में खुद आप different stories को sort out करके पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा. ठीक है, आज चूंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसका एक्सरसाइज वर्क करवाया था पेज 29 तक. ओके, फर्स्ट प्रोमो आपका था रीडिंग का जो मैंने आपको करवाया, उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई. मीनवाइल इन ग्रुप शेयरिंग आई शेयर क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग विद यू एंड वाइल रीडिंग. अच्छा, थोड़ा सा बिट कंफ्यूजन पेरेंट्स की तरफ से था कि बच्चे कहते हैं जी वाइल रीडिंग के आंसर्स हम कहाँ लिखें. तो मैंने ही आपको if you still remember when the first lecture delivered to you through our YouTube channel, तो मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. तो आप लोगों ने उसके लिए प्रॉपर लाइक जैसे कि पहले हमने लेसन पढ़ा था द ब्लाइंड बॉय. ओके, we thoroughly read the story. What about the why question? Why question is not difficult. These questions are one of the interesting way. Even आप लोग मैट्रिक स्कूलिंग में भी जो बच्चे मूव करते हैं आफ्टर 1 year, they also enjoy this targets, क्योंकि उसमें भी while reading के या prominent words को जब आप लोग पढ़ते हैं, paragraphs को पढ़ते हैं, they based on structure, and structure is based on little bit question answer. उनके कोई detail answers नहीं होते. How does the story begin with the character setting or action? ये question है, इस question को highlight कर लें आप, और इसी के नीचे मैंने कहा था इसी के नीचे sticky notepad लगाकर आपने आंसर लिख देना है. इसके नीचे ही sticky notepad में आपको एक दफा एक्टिविटी फॉर्म में इसको बताता हूँ. स्टिकी नोटपैड पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे स्कूल में सभी बच्चों के पास होता है. इट्स नॉट वन ऑफ द एक्सपेंसिव थिंग, ये कोई महंगा नहीं होता कि आप इसको बाय कर सकें. लिटरली आपने इसको जब यूज करना है कलरफुल यूज करें, और इस पे आप पेन से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं लाइक इन दिस स्ट्रक्चर. मैं ओवरऑल जितने लेसन्स पढ़ा रहा हूँ उन सभी का तकरीबन मोटिव यही है कि आपने आंसर जो है खास करके वो अपने स्टिकी नोटपैड पे लिखना है. ठीक है, सिमिलर थिंग इन चैप्टर 1, देन इन चैप्टर 2 कि आपके पास अब जैसे क्वेश्चन है व्हाट वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस सजेस्ट अ फोक टेल ओपनिंग. वेरी इजी, वंस अपॉन अ टाइम, वन अ डे, वंस अ डे. ओके, ओनली वंस, ONCE, वंस अपॉन अ टाइम स्टार्टिंग फोक टेल का होता है. आप उसके ऊपर लिखते हैं एज इन एरो सिंबल. नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है हाउ कैन वी टेल द स्ट्रेंजर विल बी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी. इसका आंसर क्वेश्चन को हाईलाइट करें. फर्स्ट वन हाईलाइट द क्वेश्चन, देन मेक श्योर टू यूज योर स्टिकी नोटपैड, देन राइट योर आंसर. ओके, टुडे योर पेज नंबर इज 30. I once again tell you, whenever the listening and speaking activity must be completed in the class during class time, I just prefer to take my all students, boys and girls, to our school library, okay, as a resource, and as one other thing, sometime in library for the resource, good resource opportunity. And otherwise, I just take my students in class, different class students regarding English subject in computer lab. वहाँ हम बच्चों को उनके listening और speaking के जो targets होते हैं at the meanwhile उन्हें बताते हैं by taking a different technical techniques होती हैं, उसकी handouts बनवाए जाते हैं, charts होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं जिनके ऊपर हम बच्चों को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके क्लूज देते हैं. ओके, लिसनिंग और स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश एंड उर्दू टू. उर्दू में भी आपको पता, आप लोगों की टीचर्स पढ़ाती होंगी, आप लोगों को बोलना, मुशाहिदा करना, गुफ्तो शनीद के हवाले से आपको बताया जाता है हाउ टू डिस्कस द टॉपिक, हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक. सिमिलर लिसनिंग और स्पीकिंग की जितनी एक्टिविटीज हैं अभी
बाय एक्सपेक्टिंग आंसर जिसके मैंने मतलब रीड किए हैं या मेरी प्रीवियस क्लास जो मेरे पास थी उन्हें मैंने पढ़ाया था, तो उनको भी मैं स्ट्रक्चर जैसे जैसे कंप्लीट होता था बच्चों का मैं करवा देता था। आपको टारगेट कंप्लीट करवाने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही स्कूल ओपन होगा हम लोग आपके जो ये टारगेट्स लिसनिंग स्पीकिंग के बाय प्रैक्टिकल फॉर्म में हैं वो आपको हम लैब में या आपके रिसोर्स हमारे पास जो अदर मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है, हम लोग क्लास में क्लासरूम इन स्कूल लाइब्रेरी और इन कंप्यूटर लैब, ये 3 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो मैं इसके आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपने इस पे करना है, और इवन ये मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को शेयर कर दिए हैं कि ये टारगेट्स आपने कैसे फिल करने हैं। लाइक I listen the story and I just explain you with the help of this picture, colorful picture. Okay, listen to the opening listen to the opening of a folk tale and answer the questions. Okay, I just listen this story very carefully and deeply too. What is the time period of a story? Then keep in your mind when you read about the story that begins with a long time ago. You just write in this lines long ago in bracket time. You read about the adverbs of time inshallah taala padhenge. Okay, describe his land. This character okay, this characters, who is this man? A poor farmer, a very one of the poorest farmer. Okay, describe his land. It was insufficient and small. In second column, describe his land. Describe land. It was insufficient and small, very small. Okay, describe his life. What about the poor farmer's life? How is enjoying the life benefits? Okay, so he looks to seem very poor because his description seem he is looking very poor. Okay, faded dress. Okay, and very a simple life, but very hard life, difficult too. Okay, describe his life. His life was past tense. His life was very simple. In bracket you mention और slash डाल के लिख लें hard, difficult, hard. Okay. Who were the people in his family? जो मैंने इसमें इसको रीड करते लिखा था कि इसकी क्या उसने बताई थी. His wife and 3 sons. His wife and his 3 sons. These are the web point questions, web map questions regarding farmer. One, long ago, in bracket you mention time. Okay, describe his land. It was insufficient and small. Okay, write in these lines. Use these lines. Okay, write carefully. Describe his life. His life was simple over hard. Who are the people in his family? His wife, and 3 sons. These are the structure points you can easily write in these 4 options with the help of this farmers word bank. Okay, what about जैसे आपने second option पे आना है, I also share these question answer in your group 2. अच्छा, जैसे ही आपने इसके ग्रुप में आपको काम मिले, आपने उसको नोटबुक पे या टेक्स्ट बुक पे कैसे करना है ये आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि आपने उसको बड़ा ही एक नीटनेस के साथ पॉइंट्स के साथ इंश्योर करके आपने करना है. ठीक है, अच्छा, अब इसकी स्ट्रेटजीज पे अगर हम लोग आते हैं जो हमसे पूछी गई हैं. लॉन्ग टाइम देयर वाज अ फार्मर, पुअर फार्मर. ओके, मैं एक्सप्लेन इसको कर देता हूं और आपने जैसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द फार्मर फाइंड. व्हाट डिड द फार्मर फाइंड, फार्मर को इसमें क्या मिला. ठीक है, ये जार है, कंटेनर है. इन व्हाट वे माइट हिज बी सिग्निफिकेंट. ओके, प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, मतलब स्टोरी का एंडिंग जो है वो क्या है. तो जब हम इसकी एंडिंग स्टोरीज की तरफ आते हैं, मैं इसको एक दफा रीड करता हूँ जिससे आप लोगों को मैंने इसमें आपको ग्रुप में शेयर भी किया है. स्टोरी का स्टार्ट ले लिया जाता है. लॉन्ग टाइम अगो. ओके, लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ पुअर फार्मर. देयर वाज अ पुअर फार्मर. हिज लैंड वाज वेरी स्मॉल and very little flourished on it. So life was very hard, difficult for him.
His wife and his 3 sons, 3 उसके बेटे थे, small children, okay, they are small, but he continued to plow, P-L-O-U-G, and plow the soil and sow the seeds. लेकिन उसकी डिफिकल्टी भी इसलिए थी कि वो अकेला काम करता था, only one person at his home, बच्चे उसके छोटे थे, ठीक है. One afternoon, after he had been on the land all the day and was working the last furrow, F-U-R-R-O-W, okay, he struck something hard. आप इस पिक्चर में देखें उसके हाथ में जो उसके टूल्स हैं, उसने जैसे गार्डनर होता है वो प्लांटेशन करता है, उसके पास अपने टूल्स होते हैं, ठीक है. इसी तरह जो फार्मर्स होते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड फार्मर्स होते हैं, उनके एक अपने टूल्स होते हैं पर्सनल. वो करते हुए समथिंग hard, you feel a very hard thing in earth, ज़मीन में. He gave the plow a hefty push, but it would not budge. P-U-D-G-E. Too exhausted to try again, he sat down. Sat down is a phrasal verb. From the corner of his eye, he saw something shiny, very brightly, sparkling, stinking, okay, out of the ground. एकदम से वो बैठ गया और जब उसने देखा कि उस ज़मीन से अल्ट्रा रेस निकल रही हैं, शुआएं निकल रही हैं, ब्राइटनेस है. सो व्हाट वाज दिस दैट इज फ्लो हार्ट स्टक STRUCK. He dug the soil, ठीक है, उसने मिट्टी को खोदा. Away, soil away is a phrasal verb. With his hands, little by little, by the effort, by using his both of hands, and lifted out an enormous metal jug with a stopper on it. Okay, what about the ending to explain? It means that the story is on the peak. Whenever he got this jug, this container, it's full of shiny brightness. इसमें से निकल रही है. What about inside? Inside there are maybe some precious jewels, stones, okay, some precious pearls, okay. ये ending है, which is the one of the most important thing for a farmer. His wife and his 3 sons, they become richest person, okay. स्टोरी की एक मॉरल एंडिंग के साथ उसको आपने एंड में लाना है. वंस अगेन आई टेल यू कि मैं इसके जो आंसर्स हैं वो आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा. व्हाट अबाउट द स्पीकिंग टारगेट? इट्स वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 और 4. ये क्लास एक्टिविटी होती है, हम क्लास में ग्रुप बना लेते हैं 3, 4 मैक्सिमम 6 या 4 स्टूडेंट्स का. तो उसमें हमें बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको आपको हैंडआउट्स बनाए जाते हैं, आप लोग बनाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट चार्ट पेपर, कलर पेजेस, ओके, टेकिंग डिफरेंट कैप्शंस, ओके, हेडिंग पॉइंट्स होते हैं. दे मेक श्योर बाय योर ओन सेल्फ एफर्ट आपका नजर आता है उसमें. वर्किंग ग्रुप्स, ओके, 3 और 4 इस इंस्ट्रक्शन. डिस्कस व्हाट यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट इन द फोक टेल व्हिच यू हेard इन लिसनिंग. ओके, नंबर 1 पावर पॉइंट है एज इन क्वेश्चन. ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड प्रेजेंट their own ideas one by one. Different students in the group share their ideas, what is in their mind, what they want to explain, what they get their own idea. You can refer to the notes you made under listening before beginning. It's one of the good opportunity. Speaking tips is one of the good tip for all of you. Please make sure to highlight it. When making predictions, okay, you can use words like probably, likely, possibly, and maybe possible, possibly, likely. These are the words as a speaking tips different students use during this activity on different time of parts. उसको टाइम के हिसाब से वो यूज करते हैं. ये नहीं कि इसे बार बार यूज किया जाए, मैक्सिमम जहाँ यूज हो. जैसे use a table view to help you record the idea. Like मैंने इसका जो मेरी प्रूफ में आइडिया आता है, जो मैंने इसको सर्च किया, जैसे ग्रुप मेंबर 1, 2, 3, 4, मेरी प्रीवियस क्लास जो 7 माशाल्लाह से स्टैंडर्ड 8 में है, उस क्लास में बच्चे बहुत शार्प और बहुत क्विक वो रिस्पॉन्स करते थे, ओके, और करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है. ग्रुप मेंबर्स में इसको डिवाइड करते हुए देखें. नंबर 1 आइडियाज को आप देखें और इसके सर्च को देखें, मैं करवाता हूँ. ग्रुप मेंबर 1 है, प्लीज इसको नंबरिंग में कर लीजिएगा. ग्रुप नंबर 1, ओके. ही टुक इट, नंबर 1 as an idea. He took past tense it to his wife. First one, he took it to his wife. Which thing? Container, a jug. Number 2, his wife took past tense it and
hid it, immediately hid it in the mud. रिलीजन पीपल ज्यादातर ओल्ड टाइम में ना अपनी जो बिलोंगिंग्स होती थी, प्रीशियस या पीरियड चीजें होती थी, छुपा देते थे ऐसे. नंबर थर्ड पॉइंट, फार्मर every day digs the land to see it. And finally, which I be capable to read in the time, it was lost. Why? Okay. When everyone has presented their ideas, everyone and all students decide as group which idea is mostly likely. जब आइडियाज शेयर होते हैं ना तो उसमें क्लास में हर बच्चे के डिफरेंट आइडियाज होता है. ओके, इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं होता. इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ग्रुप ए ने बहुत अच्छा आंसर उसका दे दिया है तो ग्रुप बी इज नॉट बी कैपेबल टू डिलीवर हिज आंसर. ओके, दे कैन बी डिलीवर देयर आंसर. ओके, दे शुड बी डिलीवर देयर आंसर. सो दैट्स व्हाई इसके लिए हर बच्चे का अपना एक ओपिनियन होता है, हर बच्चे का. और जिसका ओपिनियन बहुत अच्छा होता है उसे क्लास में एट द टाइम एप्रिसिएशन दिया जाता है कि वन ऑफ द गुड थिंग योर माइंड क्लिक इट. ओके, लाइक दिस ग्रुप डिसाइडेड द फॉलोइंग आइडिया इज द मोस्ट लाइकली. व्हाई? जो प्लॉटिंग आइडिया है वो मुझे, जो मैंने अपनी क्लास से लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था तो मुझे ये लगा था क्योंकि उसने अपनी बीवी को दिया, उसकी बीवी के जहन में एक लालच सा आ गया, मतलब कि हम इसको छुपा देते हैं, हम इसको मतलब कहीं हिडन प्लेस पे रख देते हैं, हम अमीर तो हो गए लेकिन हम जाहिर नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई उसकी बीवी की उस बेअक्ली की वजह से या लालच की वजह से वो उसको जहाँ पे छुपाता है वो भूल जाता है, वो जगह ही भूल जाता है, उसके जहन में वो जगह नहीं आती, वो बार बार उसको ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं. तो इसका प्लॉटिंग एरिया उस हिसाब से बनता है बिकॉज ग्रीड इज अ कर्स. डू नॉट बी ग्रीडी. ग्रीड इज अ कर्स. लालच बुरी बला है. ओके, द प्लॉट ऑफ गोल्ड, inverted comma begins, the pot of gold was lost. Okay, now please come on the next one page. Writing task one more, at the page number 32. Write your folk tale following steps to below. अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि हर बच्चा अपनी अपनी पर्सनल फोक टेल को कैसे करे. जैसे मैं अपनी प्रीवियस क्लास के एक्सपीरियंस बताऊं क्योंकि हम लोग डीपली इसको रीड कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई तमाम मेजॉरिटी बच्चों ने अपनी अपनी पर्सनल एक फोक टेल जो है बाय टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल, फ्रॉम लाइब्रेरी रिसोर्स, फ्रॉम इंटरनेट, ओके, फ्रॉम डिफरेंट ग्रामर्स बुक्स. ओके, उसको उन्होंने, अब देखिए ग्रामर में स्टोरीज होती हैं लेकिन वो ग्रामर बेस्ड होती हैं. अब वो गलत उसमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्पेलिंग गलत होते हैं, टेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं होती. तो चीट करने से बेहतर है कि आप पहले उसकी कंस्ट्रक्शन बनाएं वेब पॉइंट्स में और उसको खुद लिखने की कोशिश करें और उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यूजिंग बाय डिफरेंट चार्ट पेपर, टाइपिंग फॉर्मेट, ओके, यूजिंग बाय डिफरेंट राइटिंग एक्सप्रेशंस थ्रू कलरफुल मार्कर्स, हाइलाइटर्स, जैसे आपको अच्छा लगता है. ये आपका असाइनमेंट वर्क है जो आपने कलर पेज पे कंप्लीट करके अपनी नोटबुक पे नहीं लगाना बल्कि टेक्स्ट नोटबुक के इस पोर्शन पे इस तरह लगा देना है. इसके पावर पॉइंट सारे मैं पढ़ देता हूँ और उसको आपने खुद, और मैक्सिमम इट रिक्वायर्ड 300 वर्ड्स लिमिट. ओके, प्लान योर फोक टेल using the following key headings. This is one of the good opportunity for all of you to make sure by the writing task by your own self how to complete this task. कि आपके पास इंस्ट्रक्शन है, आपने इंस्ट्रक्शन को कैसे कैरी करना है. ओके, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन प्लीज हाईलाइटेड. इंट्रोडक्शन, तारुफ इसका क्या है. इंट्रोड्यूस द सेटिंग एंड कैरेक्टर. Once again about the whole setting, beginning and character, boy, girl, male, female, uncle, aunt, woodcutter, a poor village man, a poor lady. Okay, complication, mention the problem, mention the absolute that problem, which is be in the sequence of point. What will happen in the first, then in second, then in the third, and finally, which is at the ending. Okay. And describe how the problem is solved and then things return to the normal. कैसे things जो दोबारा
रूटीन में नॉर्मल होती हैं. Write at least, please make sure to highlight it. Number 2 point, write at least 300 words of your story, including the introduction and complication. At least 300. Give what you written, right, to written third form, to a partner to read, and make sure to also share this story with your different friends, class fellows, and they must work out what will happen next to finish the story. And this format required 300 words. I once again asked to you only 301 because text may mention here. When your partner has finished, discussed or similar advice, maybe you just write your own story and your friend is also write his own story. When you both discuss, आपके हो सकता है कोई कैरेक्टर्स, उसका प्लॉटिंग एरिया, कोई प्लान उससे मैच कर जाता हो, डेफिनेट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप इस चीज को एज एन एक्टिविटी फॉर्म में करें. रिमेंबर वन मोर थिंग, ये एक आपके पास पूरा सुपर नेचुरल एलिमेंट शो किया हुआ है दिस पिक्चर. Folk tales often include supernatural elements. Okay, are you set in the distant past, in past tense? What about the story? Is one of the good thing activity. Compare the blind boy in unit 1 with the 3 precious packet. अब ये एक एक्टिविटी है, जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. I share this question answer in your group 2. Okay. Consider everything you have learnt in unit 1. यूनिट 1 में जो आपने पढ़ा द ब्लाइंड बॉय में, उसके तमाम पॉइंट्स को, उनके तमाम पैराग्राफिंग है उसको आपने अच्छे तरीके से रीड किया, तो उनको अब कंपैरिजन में और सिमिलरिटी और डिफरेंट सिमिलरिटीज में डिफरेंसेस में आपने कैसे लेके आना है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कंपेयर जो मुश्तरक चीजें दोनों में एज इन कंपैरिजन. कंट्रास्ट जो दोनों का मैच करता है, मुश्तरक कॉमन होता है. कंपैरिजन जो दोनों में वासना आ जाता है, उसको कंपेयर कैसे, हाउ टू कंपेयर एनीथिंग. ओके, बट इन फोक टेल अबाउट रिलेटेड टू बोथ ऑफ कैरेक्टर्स. इन टेल्स कहानी in as many ways you can. आपने one by one उन points को judge करना है. Number 2, complete the table of similarities and difference view. अच्छा, अब ये एक्टिविटी ऐसी है कि अगर आपको फील होता है कि आंसर आपके इसमें पूरे नहीं आते, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप लोग सेंटर में एक एक लाइन और इसके लगा लें with the help of your pencil. 1 line more, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7. It makes sure that अगर similarities आपकी जो सिमिलरिटी इसके अंदर मिल रही है, मे बी वो आपकी ज्यादा हो या डिफरेंस कम हो, या डिफरेंस ज्यादा हो तो सिमिलरिटीज आपको कम लगे. तो अगर आपने इस पे करना है, वेल एंड गुड. अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो मोस्टली बच्चों को जो ड्राफ्टिंग पैड लगवाए जाते हैं उसमें करवाने का मकसद ये होता है कि आप ऊपर सिमिलरिटीज लिख लें, हेडिंग देके 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में फिर डिफरेंस की हेडिंग दे दें और लिख लें. आई आल्सो शेयर दीज ऑल क्वेश्चंस इन योर ग्रुप 2. मैंने ये ग्रुप जो आपका हमने टीचर्स ने आपका बनाया हुआ है उसमें यूज पावर पॉइंट में दिया हुआ है. मैं आपको अभी ये दिखा भी देता हूँ. यूज योर टेबल टू राइट एन अकाउंट कंपेयरिंग द टू फोक टेल्स. यू कुड ऑर्गेनाइज योर वर्क इन वन ऑफ द 2 वेज एक्सप्लेन ऑन द फॉलोइंग पेजेस. अगर आपको एक्सटेंड करना पड़ते हैं, वेल एंड गुड, आप खुद से भी कर सकते हैं. ओके, और इसके पास स्टोरी के ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसके फीचर्स हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3. इसको कैसे आपने सम अप करना है, मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रीड कर देता हूँ. ओके, व्हाट अबाउट द सिमिलरिटीज जो मुझे इसमें नहीं. नंबर 1, बोथ वर पुअर. बोथ कैरेक्टर्स, ब्लाइंड बॉय एंड न्यू, पुअर. बोथ वर काइंड हार्टेड. दैट्स गुड थिंग कि दोनों ही किरदार ऐसे हैं जो बहुत ही नहायत दिली तौर पे मेहरबान है. ओके, बोथ वर टाइड ऑन, वो स्टे इन. बोथ बॉयज वर अलोन. ओके, नेचर सेव्ड हिम. दैट्स ट्रू. बोथ हेल्प द वीकर वन पर्सन. जो पॉइंट्स मुझे इसमें सिमिलर लगे, ये मेरा अपना मतलब रीडिंग के बाद प्रेडिक्शन है. और अगर आपको फील होता है कि आपको कुछ इसमें न्यू पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि ऑथेंटिकली बोथ पॉइंट्स आर मैच टू द सिमिलर पर्सन, तो आप उसको लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो उससे मैच करते हैं. ओके, व्हाट अबाउट द डिफरेंस. मुझे जो डिफरेंसेस में फाइंड आउट हुए वो ये थे. न्यू वाज ऑन हिज वे इन एग्जामिनेशंस. ओके, व्हाइल जैक लेफ्ट हिज होम. जैक ने घर छोड़ा था जबकि न्यू अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैपिटल सिटी में मूव किया था उसने. नंबर 2, जैक मेट अ beggar. ओके, डिफरेंट कैरेक्टर. अ beggar, a poor woman and his father. Okay, on his way. While New met only a stranger who need food and shelter. उसने food require किया तो shelter मांगा था, जो उसने जब अपना बेड ऑफर किया था, comfortable bed. Number 3, Jack lost his mother
but nothing mentioned about news parents. News के parents का इसमें mention नहीं है. These are the three differences which I find in this story. अगर आप लोगों को मिलते हैं तो मैंने आप लोगों से कहा अपने सेल्फ कंटेंट के लिए सबसे पहले क्रैमिंग को मत प्रीफर किया करें, रट्टे को मत करें. अगर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, यू गेट योर माइंड अ प्रॉपर टारगेट. आपका टारगेट है कि आपने ये आंसर को ढूंढना है, आप उसको ढूंढें, खुद ढूंढें और रीड करें. और इफ यू फील अ लिटिल बिट डिफिकल्टी, अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, अपने बड़े भाई से ले सकते हैं, बहन से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछें ये मैंने रीड किया, मुझे इसमें फॉर्मेट में और ढूंढे, मैं क्या ढूंढ सकता हूँ जो मुझे उसमें एक कॉमन पॉइंट मिल सके, उसकी सिमिलरिटी क्या है, उसका कंट्रास्ट क्या है. ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 and 35 is a typical type of the folk tale as a feature. Okay, I explained that in detail, and this paragraph writing is also being I share in your group. Okay, both folk tales take place in distant past tense. Both tales express their idea that kindness is its own reward. Same moral पे जो डिबेट कर रहा है. Like Jack was a poor boy and knew too, TW2. Okay, propositional word. But New was more comfortable than Jack. That's true. Okay. Both were tied by luck, L-U-C-K, luck. Jack gives her mother's shawl to a poor woman, and New in the same way gives his own meal, okay, and cozy bedroom, a comfortable bedroom, to a stranger. Jack found his eyes more lighted up is a phrasal verb, with his good deeds, actions, facts, and New's hospitality saved his life. That's true. Okay. New was on his way for appearing in examination. While it's a conjunction word, Jack left his father's house. वो अपने बाप का घर छोड़ता है तब जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है. उसका बाप उसको एक्सट्रीमली और मजीद टॉर्चर करता है. ओके, वो गेट टाइड हो जाता है, अनाइड होता है, बीइंग सिक ऑफ हिम, किससे, अपने फादर से. Both stories have a same moral. What about the moral? M-O-R-A-L, ending part. Okay, goodness is always rewarded, or a kindness is always rewarded. This is the end of this whole exercise. Okay, one more important thing, when you use this comparison or a contrast, please kindly use this connectors, conjunctions in proper order, like in the same way. What about the equally? Okay, on the other hand, and alternatively. Okay, so please read this, whichever method you choose, जो भी method आपको अच्छा लगे, 1, 2, 3, 4. Okay, you will need to use connectors, conjunctions, connectors, linking word, joining word. Okay, of different kinds. ये रिजर्व नहीं कि यही यूज करें. There are lot of conjunctions. मैंने मैक्सिमम मैनी टाइम्स जब मैं रीड करूं, मैं कंजक्शंस की वैरायटी को बोलता हूं और मैं आपके साथ शेयर भी करूं, बल्कि आप अपने रिसोर्स पैक को देखें, उसमें वन ऑफ द लॉट ऑफ गुड वैरायटी ऑफ कंजक्शंस की वैरायटी है जिसको यूटिलाइज करें. आप लोग देखिए कहां यूज कर रहे हैं. योर स्टोरी राइटिंग प्लीज. Okay, some examples of connectors of comparison and contrast for only reserved for comparison and contrast are given in the table. Like connector of comparison, like in the same way, equally. Okay, what are the connectors of contrast? On the other hand, alternatively, and there are other connections और connectors too. आप उसको देखें, रिसोर्स पैक सभी बच्चों ने ले लिया होगा, उम्मीद की जाती है. उसमें वो तमाम मटेरियल है जो आपके इन टारगेट से रिलेटेड है. ओके, प्लीज नाउ यू ओपन योर वर्कबुक. अब सब बच्चे अपना वर्कबुक खोलें इंशाल्लाह. आज हमने वर्कबुक रीड करना है, ठीक है. द पाइड पाइपर ऑफ हेमेरन आज हमारा पहले, क्योंकि 2 टारगेट आप लोगों की एक्टिविटी की बुक के मैंने पूरे करवा दिए हैं. आप लोग साथ साथ जो अपने कंटेंट और टेक्स्ट हैं उसको प्लीज मेक श्योर करें कि आप लोगों ने चैप्टर 1 द ब्लाइंड बॉय इज टोटली कंप्लीट. रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन राइटिंग, words meaning, question answers, why question answer, vocabulary work, story structure, listening, speaking. Okay, जो book targets हैं. Same things and same topic like folktale, the 3 precious packets. Okay, what about the targets? जितने हैं वो मैंने complete करवा दिए. Also share the group work in your group too. Okay, now just we start our course book. Okay, it's one of the good opportunity for all of you कि आपके पास 7th standard में अपनी comprehension skills को ज़्यादा से ज़्यादा improve करने के लिए for to develop one of the good ability, one of the good opportunity how to improve your reading and writing task. Use this all comprehension in effect of reading. आप पढ़ें,
पहले आप पढ़ते थे पाइड पाइपर हिमालयन। ओके, अगर आप लोग इसका मूवी देखना चाहते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, इजीली यू कैन डाउनलोड थ्रू यूट्यूब पे आप जाएं, वहां पे इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड मूवीज हैं, कैरेक्टर्स हैं इन द कार्टून फॉर्म एंड इन द कैरेक्टर्स, फिल्म कैरेक्टर्स टू, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, रियली फील सो एंजॉय इट। और अगर आप इसको देखेंगे तो देखने से आपको और अच्छा इसके फैक्ट्स क्लियर होंगे कि जो जो आपने पढ़ा है थ्रू बिगनिंग टू एंडिंग वो क्या है। ओके, इट्स आल्सो अ फोक टेल, इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस फोक टेल, और आपने इसको ध्यान से सुनना है। और उसके बाद इसके जो टारगेट्स हैं वो आपने वर्क बुक पे ही फिल करना है। प्लीज मेक श्योर थिंग व्हेन यू कंप्लीट योर वर्क बुक ओनली यूज योर लेड पेंसिल, क्योंकि इसमें बार बार रबिंग हो जाती है, आंसर एक्सटेंड होते हैं, या उसके अंदर स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए थोड़ी आपको स्पेस कम लगती है, तो पेन से बच्चे बहुत सारे इसको बार बार खराब कर देते हैं। So it could be very better for all of you, one of the good opportunity to read it thoroughly and use only lead pencil. But please keep in mind, first when you sharp your pencil in a very sharp your pencil in a very you say very light and smoothly use. Okay, I read this passage. The Pied Piper of Himalayan. Okay, Himalayan. Please make sure to take your highlighter, lead pencil to underline the different difficult words and statements, idioms, okay, collective noun, different इसके अंदर variety part of speech का आएगा जो आपको साथ साथ में clear करूँगा। Okay, Pied Piper of Himalayan. It's the page number 5, page number 5. Pied Piper of Himalayan. Himalayan in Germany. The story is the story of Germany. Once again, please make sure your mind about the folk tale, about the country name, about the place name, about the area name, town, village, whatever so. It's a story from Germany. Himalayan is Germany was a medium-sized town, not village, town. Underline please, मैं जब read करूँ तो साथ साथ बता देता हूँ. Medium-sized town on the banks of the river Weser. ये एक town है medium size का, और इसके करीब ही एक river है बहुत मशहूर, जैसे इंग्लैंड में river Thames आ जाता है, यहाँ पे river Weser है, WESER, very famous and very popular, अभी भी है, ठीक है। तो ये वहां पे एक रिवर है, उसके करीब एक मीडियम साइज का टाउन है जिसका नाम है हिमालयन, कंट्री का नाम है जर्मनी। इट वाज अ प्रीटी, व्हाट अबाउट द टाउन? इट वाज अ प्रीटी, prosperous and pleasant town. Please underline these words: pretty, prosperous and pleasant town to live in. Then quite suddenly, towards the end of the 13th century, underline please, 13th century, it turned into a mega city. Mega city is a city which is one of the largest city, one of the biggest city, mega superstore, mega shopping plazas, okay, mega movies for rats, full of rats, each and everywhere ads, in streets, in parks, in gardens, in schools, in bakery, okay, in shopping malls, okay, in streets, in, you say, publicly open, rats, they're everywhere, rats, one of the biggest type of rat, he rat, she rats, okay. By the year, please underline, by the year 1804, there were at least 10 rats for every human. 10 rats for every human. हर एक इंसान के साथ साथ उसके घर में, उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग्स में 10 rats मैक्सिमम होते थे। ये year mentioned 1804. Maybe 100 and maybe extend to the 100. ठीक है, probably इसने prediction दिया हुआ है। They were everywhere, like in street, please underline. In the streets, गलियों में, in houses, घरों में, in estabbles में, in cowherds कहा जाता है जहाँ पे cow, buffalo, sheep वगैरह का एक तो होता है ना farmland होता है जहाँ पे proper गाय भैंसें होती हैं, दूध देने वाले domesticated animals होते हैं, ठीक है। In baker's shop, in bakery shop, butcher shop, कसाब की दुकान जो ये गोश्त बनाता है, green grocers, सब्जियां बेचने वाले, everywhere, ये तो उन्होंने जर्नल वहाँ के जो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उस शहर के मुताबिक जगहों को बताया। द चीज मेकिंग इंडस्ट्री, इवन चीज मेकिंग इंडस्ट्री जो कि पनीर बनाती है, ठीक है, वाज ऑन इट्स लास्ट लेग, क्योंकि आपको पता है रैट्स जो हैं वो 40, ओके, सो रैट्स जो हैं वो क्या खाते हैं? चीज खाते हैं, तो चीज इंडस्ट्री बिल्कुल तबाही के दहाने पे आ जाती है, यानी रैट्स वो इधर बनाते हैं, खाए जाते हैं, पैकिंग में होती हैं। आपको मूवी देखी है, मैंने आपसे कहा है कि आपने इसके लिए मूवी देखी है, इसका कार्टूनिक फॉर्म में, और इसका पूरा फिल्म जो पिक्चराइज मूवी है वो देखें। द चीज मेकिंग इंडस्ट्री वाज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, द लेदर वर्कर्स वर इन डिसअपियर, द कैंडल मेकर इमिग्रेटेड, द रैट्स एट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग।
what they could eat, what they could not eat, they need. ये कुतरने वाले जो जानवर होते हैं ना, जो जैसे मेमेलियंस का आप लोग 7th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ेंगे अबाउट रेप्टाइल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जो कुतरते हैं चीजों को, डेंट करते हैं, उसमें जैसे गुलहरियां आ जाती हैं, ठीक है, सिमिलर इसमें माउस आ जाता है, ये वो फैमिली को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। दे बिट पीपल, इवन ये लोगों को काट भी लेते हैं, हमारे यहाँ कई ऐसे केसेस आते हैं, एंड ऑलमोस्ट एंड एनिमल्स टू, ओके, दे गैंग्ड अपॉन द कैट्स एंड डॉग्स एंड अलाइन एंड ड्रॉव देम आउट, इवन कि कैट्स एंड डॉग्स जो उस एमेलियन के थे वो इनसे स्केयर्ड थे, डरते थे, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप आ जाता था, कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है, ठीक है, ये गैंग आ जाता था, यानी पूरा जैसे गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, तो ये गैंग अब पूरी एक रैट्स की पूरी कम्युनिटी इकट्ठी होके ऑल ऑफ सडन अटैक कर देती थी कैट्स और डॉग्स पे, जो अगर इनको मतलब कि प्रोटेक्टिवली हैंड में इनको पीछे करने आते थे, इनका डिफेंस करते थे। ये बाकायदा मूवी के अंदर है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको देखें। There was in short a crisis, one of the biggest alarming situation, crisis, जैसे इस वक्त कोरोना आया हुआ है, ऐसा क्राइसिस मच गया वहां पे। It was a town council job. यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बाकायदा तौर पे काउंसिल जो होते हैं वो होते हैं जो जैसे उनके मेयर होते हैं, टाउन मेयर होते हैं, काउंसिलर मेंबरशिप होती है, वो अपने पूरे उस टाउन को या विलेज को या सिटी को लीड करते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज का एक रूल होता है। टाउन मेयर, काउंसलर, कमेटी जो होती है वो बाकायदा तौर पे अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के जो इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके रिफॉर्म्स को सर्च करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, उन्होंने प्रेडिक्शंस जो उनके पास होती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपने काम को बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंट करना होता है। ये उनकी जॉब होती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम रेड्स, ओके। अंडर दिस लीडरशिप, उनका जो लीडर वो बर्गमास्टर है, ओके, नेम प्लीज अंडरलाइन, बर्गमास्टर्स, टू डील with crisis the counselors tried their best, they put down traps, वो जगह जगह ट्रैप्स लगा देते हैं, पॉइजन्स थ्रो करते हैं, कोई ना कोई माइंड में अपने ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाउ टू गेट रिड फ्रॉम दीज रैट्स। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इन चूहों से जान कैसे छुड़ाएं। ओके, बट द रैट्स वर टू क्लेवर, really too clever to take the bet. They asked the duke of the duke, डचेस एंड ड्यूक्स को आप लोग रीड कर लें, देखा होगा आपने स्टोरीज में देखा होगा, इसकी मूवीज भी हैं, प्लेज होते हैं इनके ऊपर, इवन आप लोग लंदन में देखें जैसे प्रिंसेस ऑफ वेल्स, लेडी डायना है, उनकी फैमिली है, वो ड्यूक एंड डचेस क्या होते हैं, कैरेक्टर्स को देखें क्या है। मदद मांगी जाती है लेकिन वो ड्यूक क्या आंसर देता है, बट सोल्जर्स वर बिजी इन फाइटिंग बैटल। वो जो सोल्जर्स होते हैं डेट टाइम जिनसे मदद मांगी जाती है ड्यूक से, वो बैटल एक लड़ाई है, जंग के लिए गए होते हैं, महाजे जंग पर होते हैं, तो वो कहते हैं वो फ्री नहीं है कि आपकी मदद करने आ सके। ओके, दे रोड टू द स्कॉलर्स और द फेमस यूनिवर्सिटी, फिर वो स्कॉलर्स को रिटर्न लेटर काउंसिल भेजती है कि आप लोग बताएं हम क्या करें, हमारी मदद करें, हम लोग इस वक्त इतने पैनिक सिचुएशन से गुजर हैं। बट बाय लेट 1284 वंस अगेन दे वर स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाई, उनको रिप्लाई नहीं आता, आंसर जो वो क्वेश्चन अपना लिख के या स्टेटमेंट बना के डिलीवर करते हैं उनको वो आंसर नहीं आता। द बर्गमास्टर इन द काउंसिल्स वर सिटिंग इन ग्लूमी, इस सिचुएशन इन द डिस्क्रिप्शन, अ ग्लूमी, अ डार्क, और सर पकड़ के वो लोग टाउन कमेटी पूरी बैठी होती टाउन हॉल में कि क्या करें, वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और हैरान होते हैं आखिर क्या करें, इस क्वेश्चन का हल नहीं नजर आता कि इन चूहों से जान कैसे छुड़ाएं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, एंड व्हाट इज इन देयर माइंड, नो वन नो दैट। व्हेन देयर केम अ नॉक, व्हेन देयर लिटरली, ये आपका लेसन खत्म जैसी होगा ना, इसका फिर नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो अगले आपको मैं थीम में बताऊंगा ये रीड करने के बाद। ओके, देयर केम टू अ नॉक एट द डोर, समवन केम एंड जस्ट नॉक एट द डोर, ओके, हु was there, come in, आवाज आती, come in, अंदर आ जाइए, cried the burgomaster, चीख के burgomaster कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ होता है, and in came the strangest looking figure any of them had ever seen, और जब अपीयरेंस अंदर आती है एक बिल्कुल डिफरेंट, अजीबोगरीब और बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ऐसी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी आती है जिसको देख के वो लोग स्टॉनिश हो जाते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस वन पेज, और फर्दर अभी इसकी रीडिंग बहुत है, नेक्स्ट आपके जो लेक्चर है उसमें मैं डिलीवर करूंगा। ओके, गुड बाय।